Dear students, today I am going to start the third poem of your textbook, which is Keeping Quiet by Pablo Neruda. So, let me tell you something about Pablo Neruda. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basalto. And to add up to your knowledge, I would like to tell you that he also won Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Keeping Quiet, the poet urges, it has two main themes. Basically, it has two main themes. First is quiet introspection, and the second one is universal brotherhood. The poet talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding in the human beings, isn't it? ये दो मेन थीम्स वो डिस्कस कर रहे हैं. पहली ये है कि अब ये समय आ चुका है कि अब हमें बिना कुछ बोले वी हैव टू बी क्वाइट, वी हैव टू कीप साइलेंट एंड वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ एंड वी हैव टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स. यहाँ पर ये मेडिटेशन पे भी बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं. अब नाउ व्हाट इज क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है सेल्फ इंस्पेक्शन और यू कैन से सेल्फ एग्जामिनेशन, आत्मविश्लेषण. एंड सेकेंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आप सभी जानते होंगे, भाईचारा. तो ये दो मेन बेसिक थीम्स हैं इस पोएम की. One more thing I would like to tell you children, that keeping quiet is really relevant in today's scenario, especially in this lockdown period, because we all are locked in our homes and we are not doing anything. The poet just want to say that sometimes by not doing anything, by not doing any physical activities, by only keeping quiet, you can help your nation in a better way. And you will be worthy enough for your nation, isn't it? Right now हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने घर के साथ टाइम बिता रहे हैं, हम सिर्फ घर के अंदर बंद हैं, मगर वो घर के अंदर बंद रहकर भी we are helping our nation in a better way. So this is really very relevant in today's scenario. So Pablo Neruda is urging कि अब इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका है, इतनी फाइट्स हो चुकी हैं, people are running behind their ambition, desires, money. They are only running besides everything, behind everything, but they don't have time for themselves. उनके पास खुद के लिए समय नहीं है. They are not introspecting their beautiful soul inside. We all have a very beautiful soul inside, but we don't have time to for ourselves, isn't it? So now I'd like to start the poem. The very first line, now we will count to 12 and we will all keep still. अब हम 12 तक गिनेंगे और उसके बाद हम सब स्टिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे. मतलब हमें हिलना नहीं है. The poet is saying you have to be very quiet, you don't have to move anything, you have to be very silent. अब यहाँ पे जो 12 है स्टूडेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर ये 12 ही क्यों बोला? इन्होंने 1 to 12 काउंट करने को ही क्यों बोला? Why not 11? Why not 13? Why not 14? You must have thinking that. So I'll tell you, 12 number is very relevant और ये बहुत चीज़ों को symbolize कर रहा है. Please be with your textbook and write, and after that you make a note of it. You have 12 months in a year. You have 12 zodiac signs. There are 12 numbers in the clock. And surprisingly, I don't say surprisingly, but this title also have 12 alphabets. I have counted that. So keeping quiet have 12 alphabets, 12 letters in your title. So these all things are correlated. And ये सारी चीज़ें correlated क्यों कर रहा है पोएट? Because these all things stands for togetherness. पोएट चाहता है एक सडन स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में एक टुगेदरनेस का वो आप कह सकते हो मैसेज देना चाहता है कि इट ऑल स्टैंड्स फॉर टुगेदरनेस. वो बोलता है कि वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक काउंट करेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब क्या हो जाएंगे? बिल्कुल भी शांत हो जाएंगे, बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, आपने पता नहीं सुना होगा, स्टूडेंट्स की नहीं सुना होगा, दैट स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्डन. सो पोएट इसी चीज़ को लेके चल रहा है
कि नाउ इट्स हाई टाइम दैट वी हैव टॉक्ड अ लॉट, हम बहुत बातों करके, क्योंकि यहाँ पर जो धरती पे सबसे ज़्यादा जो मुद्दे होते हैं वो बातों से ही होते हैं. इफ़ विल नॉट टॉक टू ईच अदर, इफ़ वी इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ, हम शांत से अगर अपने घर में बैठेंगे और चुपचाप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो विल कम टू नो आवर वीकनेसेस, और हमें पता चलेगा कि हाँ कई जगह पे हम गलत थे, और विल बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग. सो यहाँ पर देख लीजिए, वी विल एंड वी विल रेपिटेशन है, एंड वी विल में एलिट्रेशन भी है. ठीक है, दोनों चीज़ें देख लीजिए. 12 मैंने ऑलरेडी बता दिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई होप दीज 2 लाइन्स आर क्लियर. नाउ मूविंग ऑन. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट्स स्टॉप for 1 second and not move our arms so much. So यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पहली बार, ये ऐसा पहली बार होगा क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है. The poet is giving us an exercise which we have not practiced before. So once on the face of earth हम क्या करेंगे? Will not speak in any language. हम किसी भाषा में नहीं बोलेंगे. Will be very quiet and will stop for a second. उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, उस टाइम पे जब हम चुप रहेंगे, उस समय विल नॉट मूव आवर हैंड्स सो मच. हम अपने हैंड्स, अपने लेग्स, अपनी किसी भी कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं करेंगे. अब यहाँ पे आर्म्स के 2 मीनिंग है. आर्म्स में आप कह सकते, यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच पन है, बिकॉज आर्म्स हैज़ 2 मीनिंग. वन इज हैंड, सेकेंड इज वेपन्स. तो बेसिकली यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रहे हैं, जब हम अपने हाथों को कम चलाएंगे तो हम डिस्ट्रक्शन कम करेंगे. बिकॉज हम ज़्यादातर जो वायलेंस है, वी ऑलवेज यूज आवर हैंड्स फॉर वायलेंस. सो इफ़ वी बी क्वाइट, इफ विल नॉट टॉक टू ईच अदर, इफ वी वेरी क्वाइट, then this is the only way, then we'll reduce the destruction, we'll reduce the violence. It's difficult to stop it properly, but still we can reduce. अगर हम थोड़ा सा एफर्ट डालें तो हम इसको कम कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए, लेट्स में रेपिटेशन है. ऑल राइट, नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. We would all be together in a sudden strangeness. Yes, ये एक बहुत ही अजीब सा मोमेंट रहेगा, स्ट्रेंज मोमेंट रहेगा. एक्सोटिक मीन्स स्ट्रेंज. दिस इज द मोमेंट इन विच we don't have any noise of engines. We will be together in the sudden strangeness. हम सब साथ रहेंगे. ये बहुत ही अचानक होगा. सडन मतलब इट इज़ नॉट प्री कंसीव्ड. ये अचानक होगा बिकॉज हमें इसकी आदत नहीं है. वी हैव नॉट डन दिस बिफोर. और ये बहुत स्ट्रेंज होगा. एक तो अचानक होगा, दूसरा अजीब होगा. जैसे यू आर फीलिंग दिस बिकॉज दिस काइंड ऑफ सिनेरियो यू हैव नेवर फेल्ट बिफोर. आप कभी भी अपने घर में लॉकडाउन होकर कभी नहीं बैठे हैं. नेचर इटसेल्फ इज टेकिंग रिवेंज टू अस कि यू हैव हार्म्ड मी वेरी बैडली. हमें बहुत बुरी तरह से आपने हार्म किया है. नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू टेक रिवेंज. यू हैव टू बी एट योर होम एंड आई विल एंजॉय माई फ्रीडम. अभी आप देख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोई व्हीकल्स नहीं चल रहे हैं, तो जो एनवायरनमेंट है इज़ वेरी प्लीजिंग. बहुत साफ हो गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया है. सो इट्स हाई टाइम कि अब जो प्रकृति है वो भी हमसे रिवेंज ले रही है, तो हमें संभल जाना चाहिए. सो अब हमें पोएट यही अर्ज कर रहे हैं कि इट्स हाई टाइम दैट यू हैव टू बी वेरी क्वाइट. और ये एक बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट रहेगा जिसमें कोई मशीनें नहीं चलेंगी. जैसे इंजन जो है वो मशीन्स का प्रतीक है. कोई रश नहीं होगा, भीड़ भाड़ नहीं होगी. हम सब एक साथ तो होंगे मगर अलग अलग, मतलब हम सब अपने अपने घरों में एक साथ होंगे. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट रहेगा. दिस विल ब्रिंग अस a sudden strangeness and togetherness, isn't it? Because when there is no rush, no movement and noise of engines, the threat of sudden strangeness will tie all of us together in an exotic moment, isn't it? So that is why he is urging that do practice that exercise, be quiet. अब यहाँ पे सडन स्ट्रेंजनेस में एलिटरेशन है, ठीक है. विदाउट रेपिटेशन, जस्ट मार्क दिस. यस,
सो आप यहाँ ये 3 स्टैंजा में आई थिंक यू हैव इज इट क्लियर दैट यहाँ पर जो पोएट है उसका एकमात्र यही अर्ज है कि नाउ यू हैव टू बी क्वाइट. He requests us not to use any language and move our hands so much for a while, as it will become a hurdle in keeping quiet, which is a very important exercise nowadays, and you have to do it. It is also when there is no rush, nothing will be there, we'll be very quiet, and so that we will all be together, and we'll all be quiet. Now come to the next stanza. Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hand. अब यहाँ पर इस स्टैंजा में चिल्ड्रन द पोएट यहाँ पर आप कह सकते हो ही इज अगेंस्ट ऑफ इलीगल हंटिंग, और आप कह सकते हो डिस्ट्रक्टिव हंटिंग, जिसको हम कह सकते हैं लिमिटलेस हंटिंग. कभी कभी जो फिशरमैन होते हैं दे बिकम इग्नोरेंट एंड बिकॉज ऑफ हिज सेल्फिशनेस, बिकॉज हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एम्बिशन के लिए, अपने डिज़ायर के लिए, कि हमें सब पता है कि अगर हम नेचर का जो बैलेंस है उससे अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो सूनर और लेटर वील गेट वी हैव टू सी द कॉन्सिक्वेंसेस हम ही को फेस करने हैं. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स वी गेट व्हाट, इग्नोरेंट. तो यहाँ पे जो फिशरमैन है कोल्ड सी में, यहाँ पर ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम सब क्वाइट रहेंगे, विल नॉट मूव आवर हैंड्स, विल नॉट टॉक टू ईच अदर, विल नॉट डू एनी फिजिकल एक्टिविटीज, वी विल बी इंस्पेक्टिंग आवर सेल्फ. तो इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दिस पर्टिकुलर टाइम, जो फिशरमैन है वो कोल्ड सी मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको हर्ट नहीं करेगा, जो वेल्स हैं उनको हार्म नहीं करेगा. और ये जो हंटिंग है, जो एक्सटिंक्शन हो रहा है जो हमारे यहाँ एनिमल्स का, दो वो एक्वेटिक एनिमल्स हो चाहे हमारे वाइल्ड एनिमल्स है, जो उनका एक्सटेंशन हो रहा है, द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन विल बी अवॉइडेड, वो नहीं होगा. सो इस वजह से वहाँ पे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फिशरमैन जो है वो जो कोल्ड सी में वो अपने आप कह सकते हो वो वेल्स को हार्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस समय शांत है, ही इज क्वाइट, तो ही कैन नॉट डू एनीथिंग. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड. अब यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं जो नमक बनाते हैं, यहाँ पे नमक बनाने से मतलब ये नहीं है कि वाकई में नमक बना रहे हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, जो अपनी दिनचर्या चलाने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें उन्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है. क्योंकि जब हमारे हाथ पे कटा होता है, बोलते हैं ना जले पे नमक छिड़क दिया. इफ़ वी हैव ऑलरेडी हर्ट हैंड्स, और उन हर्ट हैंड्स के बावजूद भी, हर्ट हैंड्स मतलब हमने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है, वी हैव किल्ड सो मैनी पीपल्स, हमारे जो हाथ हैं वो ब्लीडिंग हैं, वो ब्लीड कर रहे हैं बिकॉज वी हैव डन सो मैनी रॉन्ग थिंग्स. इट्स नॉट कि हमने केवल फिजिकली किसी को हर्ट किया, हो सकता है मेंटली इमोशनली भी बहुत किसी को हर्ट किया हो. सो जो नॉर्मल सर्वाइवल्स हैं, जो मैन गैदरिंग सॉल्ट है, वो जो नमक बनाने वाले हैं, जिनके हाथों पे जख्म लगे हुए हैं, जब वो नमक जो होगा उनके हाथ पे छिड़केगा तो शायद उन्हें वो दर्द का एहसास हो, और जब वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और शांति से बैठ के व्हेन दे एनालाइज देमसेल्फ, तो वो शायद इसको फील करेंगे कि येस वी हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड वी हैव टू रिड्यूस दैट. दिस इज द कीपिंग क्वाइट इज द ओनली वे टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ हेट्रेड, रेस, caste and creed, isn't it? So it's very important. So fisherman in the cold sea, यहाँ पर जो cold sea है यहाँ पे transferred epithet है, क्योंकि transferred epithet में role reversal होता है. यहाँ पे cold sea जो है आप कह सकते हो वो sea cold नहीं है, ये किसको दिखा रहा है, ये aquatic animals को show कर रहा है, क्योंकि fisherman हमारे जो हैं वो बहुत ignorant हैं, and that is why they are बहुत बुरी तरीके से they are just killing the aquatic animals. And if they will be quiet, अगर वो घर पे बैठेंगे और शांत रहेंगे तो this things will reduce, ये चीज़ें थोड़ी सी reduce होंगी. hurt hands में देखिए यहाँ पर भी alliteration है, hurt hands alliteration, and all right. I think these stanzas are clear now. One more thing I would like to tell you, जो हमने 12th का जो symbolize किया है उसमें एक चीज़ मुझे और बतानी है कि जब आपने देखा होगा कि जब घड़ी में 12 बजते हैं
when it's 12 a.m. or 12 p.m. You have always observed that both the hands, like minute hand and hour hand, always faces towards 12. दोनों साथ होते हैं. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे 12 बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पोएट ने 12 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलेट की हैं और ये सारी ही चीज़ें टुगेदरनेस को बताती हैं. इट स्टैंड्स फॉर टुगेदरनेस. सो पोएट ने यहाँ पे ये भी अर्ज किया है कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन. तो यू हैव टू बी क्वाइट, यू हैव टू बी साइलेंट सो दैट यू विल जस्ट स्टॉप द जो हमारे लाइफ में इतना डिस्ट्रक्शन है, इतना नेचर को हम इम्बैलेंस कर रहे हैं, हम बहुत बुरी तरीके से लोगों को हर्ट कर रहे हैं. दीज ऑल थिंग्स विल बी क्वाइट इफ वी प्रैक्टिस द हैबिट ऑफ कीपिंग क्वाइट. दिस एक्सरसाइज द पोएट हैज़ गिवन टू अस दैट वी हैव टू बी क्वाइट, बी साइलेंट एंड वी हैव टू क्वाइट इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ बिकॉज वी ऑल हैव अ वेरी ब्यूटिफुल सोल इनसाइड. एंड हम जब अगर उसको अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने आप पे ध्यान देंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये जो चीज़ें हम कर रहे थे वो जान के भी अनदेखा करके कर रहे थे बिकॉज वी आर गेटिंग इग्नोरेंस. तो अपने इग्नोरेंस को मिटाने का समय आ गया है. एनलाइट योर सेल्फ एंड बी क्वाइट. थैंक यू चिल्ड्रन. रेस्ट ऑफ द पोएम विल डिस्कस टुमारो. आई विल सेंड यू द वीडियो. आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दैट काइंडली आस्क मी. इसके अलावा आई विल गिव यू द नोट्स ऑल्सो. So practice it. Thank you. Because of that weak audio we are not able to connect. आज class हमारा नहीं हो पाया. Let us see, we'll get a better platform. So by the time I'll just give my videos, listen to it very carefully and make a note of it. Thank you so much.